Hello students, welcome to the class here, and today now we are going to discuss some of the numerical based upon the abnormal molar masses. तो लास्ट टाइम जैसे हमने कहा था कि अगर सल्यूट्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स हों तो उनका डिसोसिएशन हो जाता है या फिर कुछ सल्यूट्स का एसोसिएशन भी होता है, तो उनका हम जब मोलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करते हैं, सो दैट इज़ योर नॉट as the true molar masses. So those molar masses are called the abnormal molar masses, right? तो इन केसेस में ट्रू मोलर मास ऑब्टेन करने के लिए हम अपने सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एक्सप्रेशंस को मॉडिफाई करते हैं, एंड दीज आर दी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. जैसा कि पहला है relative lowering in vapor pressure. So it is your PA naught minus PS divided by PA naught equal to, it should be XB only, but in the modified form it is multiplied by I, where I is the Van 't Hoff factor. So that consider the effect of association or the dissociation of solutes. Similarly, in the elevation in boiling point, the formula now become delta TB equal to I times KBM, and depression in freezing point delta TF equal to I times KFM, and for the osmotic pressure that become pi equal to I times N by V RT. Okay, now whenever, if suppose there is no association or dissociation, in that case the value of I will become 1. But if there is a case of either association or dissociation, so we have to consider the value of I. So the very first numerical here, assuming complete dissociation. So complete dissociation means alpha equal to 1. It is not I equal to 1 but alpha equal to 1. Calculate the freezing point of a solution prepared by dissolving 6 gram of Glauber salt. Glauber salt का ये chemical formula है sodium sulfate dot 10H2O in 0.1 kg of water, and the Kf for the water it is given 1.86 Kelvin kg per mole. So now it is your the how the process is. तो यहाँ पर जो सोडियम सल्फेट है that dissociates like this in the aqueous solution, it will give you the 2 moles of sodium ion and 1 mole of sulfate ion along with the 10 moles of water. तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल इसमें आए आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन द एक्वस सोल्यूशन, तो एक्वस स्टेट में पहले से ही हमारा जो सॉल्वेंट वाटर है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल उस सॉल्वेंट में मिक्सअप हो जाते हैं, राइट. सो दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द पार्टिकल्स ऑफ द सल्यूट, राइट. So particles of the solute in solution, they are sodium ion and the sulfate ion. So now initially we have taken the 1 mole of the Glauber salt. So initially there is no dissociation, so number of particles of sodium ion and sulfate ion will be 0 0. Now after dissociation, it is said in the question complete dissociation, means after dissociation there will be no particle of sodium sulfate is left out, so that now will become 0. Okay, now from the equation if you see, when it is your 1 mole, there is a formation of 2 moles of sodium ion, and when 1 mole is dissociated, so there will be the formation of 2 mole of sodium ion and 1 mole of sulfate ion, and the number of mole of water it is not considered, as it is a your become the part of the solvent. Now you may calculate first the Van 't Hoff factor I. I का मीनिंग क्या है? Number of particle after dissociation divided by the number of particle initially taken. So after dissociation, what the number of particles are? 0 plus 2 plus 1, right? Or initially it was 1. So 2 plus 1 divided by 1, that become 3. So I now will become 3. What the data known are: mass of the solute 6 gram, mass of the solvent 0.1 gram, and the Kf value is given. Okay, so first I may calculate here the molar mass of the solute, right? You know the chemical formula of the Glauber salt. So from this formula you may calculate here the molar mass of the solute. Now you may write here
the modified version of the depression in freezing point formula, delta TF equal to I times KF into M. So I KF और M की वैल्यू मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. नंबर ऑफ मोल को फिर से यहाँ ब्रेक किया गया है, मास ऑफ द सल्यूट डिवाइड बाई द मोलर मास ऑफ द सल्यूट. राइट, ये सबके डाटा की वैल्यू पुट की. I इक्वल टू 3, KF 1.86, मास ऑफ सॉल्वेंट 6 ग्राम, मोलर मास 322 एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी पहला हमारा मास ऑफ सल्यूट है 6 ग्राम, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg 0.1. तो इसको कैलकुलेट करने से ये वैल्यू आ गया 1.04 केल्विन. राइट, सो डेल्टा TF इट इज डिफाइंड एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट माइनस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. तो हमें इसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिटरमिन करना है. सो TF विल बिकम TF नॉट माइनस डेल्टा TF. TF नॉट इट इज योर the freezing point of the solvent and solvent is here water and water का freezing point है 273.15, right, minus this the change in temperature 1.04. in this way that become 272.11 Kelvin as the freezing point of the solution. Now the next question, a solution A contains 6 gram of urea in 100 ml of it at 27 degrees Celsius. White solution B has 6 gram of acetic acid in 100 ml of the solution at the same temperature. Are the two solution equimolar concentration as well as isotonic? तो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो सोल्यूशन है. एक सोल्यूशन A है, उसमें 6 ग्राम ऑफ यूरिया और उसका वॉल्यूम है 100 ml. दूसरा सोल्यूशन है, उसमें 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड है और इसका भी वॉल्यूम है 100 ml. तो हमें दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा और दोनों का हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा या नहीं. सो सी हियर, first now we may calculate here the molar concentration of both the solution. First I have taken here the solution A, it is mass of the solute, volume of the solvent, and molar mass in this your solution A, the solute is urea. So first you calculate the molar mass of the urea का फार्मूला NH2CO NH2. तो इससे हमने ये कैलकुलेट कर लिया the molar mass of the urea, that is 60 gram per mole. Now find out the molarity of the solution, that is N by V, mass of solute divided by the molar mass of solute divided by the volume of solution in liter. तो ये mass of solute 6 ग्राम, molar mass 60 and volume of solution is 100 ml. तो इसको हमने लीटर में कन्वर्ट किया, that become 0.1 लीटर. इस तरह से ये आ गया 1 मोल पर लीटर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन A. नाउ वी मे फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन B. तो सोल्यूशन B में मास ऑफ सल्यूट 6 ग्राम है और वॉल्यूम है 100 ml, दैट इज 0.1 लीटर. अब हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज द योर केमिकल फार्मूला फॉर एसिटिक एसिड CH3COOH. तो इसको हमने कैलकुलेट किया और ये भी वैल्यू आ गई 60 ग्राम पर मोल. नाउ फाइंड आउट द मोलैरिटी, मास ऑफ द सल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो 6/60 इंटू 0.1. सो इसका भी कंसंट्रेशन आ गया 1 मोल पर लीटर. इट मीन्स सॉल्यूशन A एंड B दे हैव सेम मोलैरिटी और द इक्विमोलर कंसंट्रेशन. अब हमें इनका ऑस्मोटिक प्रेशर चेक करना है दोनों ही सॉल्यूशन का. तो सॉल्यूशन A का हमारे पास ऑस्मोटिक, अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है. तो हम पहले से यहाँ पर I का फैक्टर यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं, पाई इक्वल टू I टाइम्स N बाई V RT. पहले हमारे सॉल्यूशन A में यूरिया है, तो यूरिया का कोई डिसोसिएशन और एसोसिएशन वाटर में नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर I इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है. और बाकी सेम है, नंबर ऑफ मोल 6/60, वॉल्यूम इन लीटर 0.1, ये R की वैल्यू 0.0831 और ये टेम्परेचर उसको केल्विन स्केल में 300, राइट. और इस तरह से हमने ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया
24.94 बार आ गया। अब हम सॉल्यूशन बी के केस में भी ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। अब एसिटिक सॉल्यूशन बी में हमारा एसिटिक एसिड डिजॉल्व है, तो एसिटिक एसिड दैट आयनाइजेस इन द वाटर, और ये वाटर में इसका होगा आयनाइजेशन एज द एसीटेट आयन एंड द हाइड्रोनियम आयन। ओके, अब यहाँ पर एक पार्टिकल से हमारे ये बन रहा है 2 पार्टिकल, मतलब इसका डिसोसिएशन हो गया। तो डिसोसिएशन के केस में I विल ऑलवेज बी मोर देन 1, और ऑस्मोटिक प्रेशर I की वैल्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या है, I टाइम्स N/VRT। N/VRT की वैल्यू वही आएगी क्योंकि N की वैल्यू सेम है, V सेम है, RT सब कुछ सेम है। तो ये जो फैक्टर है, दिस फैक्टर विल बी 24.94, लेकिन यहाँ पर I का फैक्टर इंक्लूड है। प्रीवियस सॉल्यूशन A में I = 1 था, यहाँ पर I इज मोर देन 1, इसका मीनिंग कि ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी मोर देन 24.94 बार, राइट। और जबकि सॉल्यूशन A का ऑस्मोटिक प्रेशर है 24.94 बार, इसका मीनिंग कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट है। दैट्स वाई द सॉल्यूशन A एंड B आर नॉट आइसोटोनिक। बोल देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, the 0.6 ml of acetic acid having density 1.06 gram per ml and it was dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed was 0.0205 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा डिग्री सेल्सियस में डिप्रेशन दिया हुआ है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। तो केल्विन स्केल में भी ये चेंज इन टेम्परेचर है, तो इसकी वैल्यू यही रहेगी, ठीक है। सो कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड एंड द KF ऑफ द वाटर, इट इज गिवन दिस मच। तो सबसे पहले हम उस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड का मास कितना है वो हम डिटरमिन करेंगे। तो मास ऑफ एसिटिक एसिड विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी इज गिवन 1.06 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम इज गिवन 0.6 ml, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये हमारा आ जाएगा मास ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, दैट कम्स आउट टू बी 0.636 ग्राम। अब हम मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड डिटरमिन करेंगे, सो दैट बिकम 60 ग्राम पर मोल, राइट। ये सब नोन डाटा है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.0205 डिग्री सेल्सियस एंड दैट विल बी द सेम एट 0.0205 केल्विन। ये KF की वैल्यू है और ये है मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है 1 लीटर ऑफ वाटर, राइट, एंड द 1 लीटर को हमने चेंज किया ml में, तो 1000 ml एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, राइट। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी दैट बिकम द मास, तो ये आ गया 1000 ग्राम और 1 kg। नाउ यूज द फार्मूला डेल्टा TF इक्वल टू I टाइम्स KF इंटू M, I टाइम्स KF और ये M की वैल्यू WB/MB और ये फिर डिवाइड बाई WA। अब सभी की हमने वैल्यू पुट कर दी। डेल्टा TF की वैल्यू 0.0205, I हमें फाइंड आउट करना है, KF की वैल्यू 1.86, ये मास ऑफ सॉल्यूट 0.636 जो कि हमने ऊपर में यहाँ पे डिटरमिन कर रखा है मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड बाई द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 60 ग्राम पर मोल एंड डिवाइड बाई द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg दैट इज 1 kg। ओके, इस तरह से इसको हमने सिंप्लीफाई करके I की वैल्यू ये फाइंड आउट कर दी। अब यहाँ पे ये तुम्हें श्योर रहना है, ये एसिटिक एसिड है दैट डिसोसिएट्स इन द वाटर, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ I शुड बी मोर देन 1। तो हमारी ये वैल्यू मोर देन 1 आ भी रही है, इट मीन्स आवर कैलकुलेशन मे बी करेक्ट, राइट। अगर ये वैल्यू बाई चांस लेस देन 1 आती तो हमको यहाँ पर एक तरह का ये चेक मिल जाएगा कि समथिंग इज रॉन्ग। नाउ यू मे राइट हियर द डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड दैट बिकम्स लाइक दिस, एसिटिक एसिड प्लस वाटर, इट विल गिव यू द एसीटेट आयन एंड द हाइड्रोनियम आयन। द इनिशियल नंबर ऑफ मोल एसिटिक एसिड का अगर हमने 1 लिया है तो इनिशियली में एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन 0 0। अब
इक्विलिब्रियम में इनका हम नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे वंस योर द इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड। तो हमने एज्यूम किया कि अल्फ़ा सपोज इट इज़ योर द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, राइट, और द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन दैट इज अल्फ़ा। ये आई क्या है, दैट इज़ द वन टॉप फैक्टर। तो आई और अल्फ़ा इन दोनों में डिफरेंस है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मीनिंग है कि आउट ऑफ द टोटल हाउ मैनी पार्टिकल गेट डिसोसिएटेड, राइट, हाउ मैनी फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल गेट डिसोसिएटेड, तो वो है अल्फ़ा। तो हमने यहाँ पर मान लिया अल्फ़ा इसका है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमने 1 लिया है, तो इट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड विल बिकम अल्फ़ा, राइट। और पहले 1 था तो 1 में से अल्फ़ा डिसोसिएट हो गए, तो अब कितना बचा, एसिटिक एसिड का पार्टिकल जो कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, दैट बिकम 1 माइनस अल्फ़ा। अगर इसका एक पार्टिकल डिसोसिएट होता है तो एसीटेट आयन का एक पार्टिकल और हाइड्रोनियम आयन का भी एक पार्टिकल फॉर्म होगा। तो अगर इसका अल्फ़ा नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट हुआ तो एसीटेट आयन का अल्फ़ा नंबर और हाइड्रोनियम आयन का भी अल्फ़ा नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म होगा। अब हम निकालेंगे वन टॉप फैक्टर आई। तो वो क्या होता है कि सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, अब एसिटिक एसिड का भी उसमें पार्टिकल है तो ये भी काउंट करेंगे, उसमें एसीटेट आयन भी है ये भी काउंट होगा और हाइड्रोनियम आयन भी है, तो इन सभी का सम, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा एंड प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई इनिशियली हाउ मच द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट हैज़ बीन टेकन, दैट इज 1 मोल इन द इनिशियली, सो डिवाइड बाई 1, राइट। और इससे हमारे पास ये वैल्यूज़ को हमने सिंप्लीफाई किया, एक अल्फ़ा कैंसिल हो गया, सो दैट बिकम 1 प्लस अल्फ़ा। तो i इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा में बिकम i माइनस 1, राइट, और i की वैल्यू 1.04 माइनस 1, सो दैट बिकम अल्फ़ा इक्वल टू 0.04। और यहाँ भी एक तरह का चेक है, अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, चाहे पार्टिकल का एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, अल्फ़ा विल ऑलवेज बी लेस देन 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फिर से हमने इसका एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन लिखा, एसिटिक एसिड प्लस वाटर, एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन, इसका अब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन एज्यूम कर लिया एसिटिक एसिड का, लेट इट बी C। तो अभी इनिशियल में ये फॉर्म नहीं हुए हैं तो इनका कंसंट्रेशन 0 ओके। अब इसमें से इक्विलिब्रियम, तो जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया उस समय क्या कंसंट्रेशन सभी का होगा। तो यहाँ पर हमारा अगर अल्फ़ा है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और पहले C नंबर ऑफ पार्टिकल थे, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट हुए, दैट बिकम C इंटू अल्फ़ा, राइट, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड डिवाइड बाई द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड विल बिकम अल्फ़ा इंटू द इनिशियली नंबर ऑफ पार्टिकल दैट वाज C। तो C इंटू अल्फ़ा इसके पार्टिकल डिसोसिएट हो गए और पहले थे C, तो अब कितने बचे, दैट इज C माइनस C अल्फ़ा, और यही इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम वही सेम है। सो कंसंट्रेशन विल बिकम C माइनस C अल्फ़ा। अब इसका जब एक पार्टिकल डिसोसिएट होता है तो इसका एक पार्टिकल और इसका एक पार्टिकल फॉर्म हो रहा है, तो जब C अल्फ़ा नंबर ऑफ पार्टिकल इसके डिसोसिएट हुए तो एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन के C अल्फ़ा नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म होंगे और वॉल्यूम वही सेम है, तो यही इनका कंसंट्रेशन हो जाएगा C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इन योर सेम थ्रू आउट, तो इसलिए दिस नंबर ऑफ पार्टिकल में बिकम आल्सो द योर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर K इक्वल टू क्या हो जाएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइड बाई द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास है C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा डिवाइड बाई प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट का ये C माइनस C अल्फ़ा, तो इसमें से हमने C कॉमन ले लिया है, दैट बिकम 1 माइनस अल्फ़ा। और वाटर इज ए प्योर सब्सटेंस,
तो प्योर सब्सटेंस का हम कंसंट्रेशन 1 एज्यूम करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका वैल्यू नहीं लिखा गया है, या लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से एक ये C कट गया, तो ये क्या बन गया, C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट। और C की वैल्यू अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। C विल बी योर नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल कितना है, ये हमारे पास मास है 0.636 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइड बाई द मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड 60, राइट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन द क्वेश्चन 1 लीटर, सो दैट बिकम द कंसंट्रेशन वैल्यू एच C। तो ये C की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ K एज 1.77 into 10 to the power minus 5. Now the next question here, the 75.2 gram of phenol is dissolved in 1000 gram of a solvent, और इसका ये Kf की वैल्यू दी है 14 Kelvin kg per mole। If depression in freezing point is 7 Kelvin, तो डेल्टा Tf की वैल्यू 7 Kelvin दी है। So find the percentage of phenol that dimerizes, मीन्स हमको अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो ये मास ऑफ सल्यूट है WB, ये मास ऑफ सॉल्वेंट, इट इज़ गिवन 1000 ग्राम, राइट, दैट इज बिकम 1 kg, और ये Kf की वैल्यू, राइट, डेल्टा Tf की वैल्यू इट इज़ गिवन 7 Kelvin, ओके। और अल्फ़ा हमें डिटरमिन करना है, तो पहले हम डेल्टा Tf इक्वल टू I टाइम्स Kf इंटू M, यहाँ से हम I की वैल्यू पहले डिटरमिन करेंगे, ठीक है। तो Kf WB बाई MB इंटू WA, मोलर मास ऑफ फिनॉल, इट इज़ योर द केमिकल फार्मूला ऑफ द फिनॉल C6H5OH, ठीक है। तो इसका हमने मोलर मास कैलकुलेट किया, दैट बिकम 94 ग्राम पर मोल। अब यहाँ से इस एक्सप्रेशन को हमने I के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो I विल बिकम डेल्टा Tf इंटू MB इंटू WA डिवाइड बाई Kf इंटू WB। अब इन सभी की वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा Tf 7, MB 94, WA that is your 1 kg, Kf it is your given Kf value 14 Kelvin kg per mole, right, और ये WB 75.2 ग्राम। तो इससे हमने कैलकुलेट किया, I की वैल्यू आ गई 0.625। अब देखो यहाँ पर I की वैल्यू लेस देन 1I है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर पार्टिकल का एसोसिएशन हो रहा है। डाइमराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि दो पार्टिकल सल्यूट के मिल के सॉल्यूशन में उसका एक पार्टिकल बन जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डाइमराइजेशन, राइट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल गेट रिड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन, इसीलिए यहाँ पर I की वैल्यू लेस देन 1I है, राइट, दैट इज ए चेक फॉर यू। अब यहाँ पर हमने डाइमराइजेशन या एसोसिएशन ऑफ फिनॉल का इक्वेशन लिखा हमने। ये फिनॉल के दो मॉलिक्यूल, ये एक पार्टिकल बना रहा है, राइट, ये ट्वाइस, सो दैट बिकम ए सिंगल पार्टिकल, राइट। तो यहाँ से इनिशियल इसका नंबर ऑफ मोल अगर हमने 1 लिया तो इसका अभी इनिशियल में 0 है। अब इक्विलिब्रियम में इसका नंबर ऑफ मोल निकाला तो अल्फ़ा हमने एज्यूम कर लिया इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो अल्फ़ा फ्रैक्शन इसका एसोसिएट हो गया। तो पहले 1 था, तो अब कितना बचा फिनॉल का 1 माइनस अल्फ़ा। अब इसके दो पार्टिकल मिलके इसका एक पार्टिकल बन रहा है, इट इज योर 1, ठीक है। तो अल्फ़ा इसका अगर हमारा एसोसिएट हुआ तो इसका फॉर्म होगा अल्फ़ा बाई 2, राइट। नाउ यू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ I की वैल्यू, तो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाई द नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली प्रेजेंट। तो टोटल नंबर कितना हुआ 1 माइनस अल्फ़ा एंड प्लस अल्फ़ा बाई 2 एंड इनिशियली इट वाज योर 1। इसे सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। अब देखो यहाँ से भी I की वैल्यू क्या आ रही है 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, मतलब 1 माइनस समथिंग, और ये जो अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1 हमेशा होगी, चाहे एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो। तो अल्फ़ा बाई 2 विल आल्सो बी लेस देन 1, तो 1 माइनस सम क्वांटिटी लेस देन 1, सो दैट विल बिकम लेस देन 1, राइट, एंड दैट इज़ ट्रू, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है। तो अब ये I इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, तो अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू आ गई 1 माइनस I, और अल्फ़ा हो जाएगा
2 टाइम्स 1 माइनस आई। अब यहाँ पर आई की वैल्यू हमने पुट कर दी, जो कि हमने आई की वैल्यू ऊपर में ये कैलकुलेट की थी 0.625। तो ये आई की वैल्यू यहाँ पुट किया, इससे अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0.75। तो व्हाट विल बी दी परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन? दैट बिकम 75%. Okay, so that's all for today's class. Thank you.